Hello students, hope you all are doing well. Dear students, let me ask one question. What do we need to do work? We need energy to do work. Okay, because to perform various activities in our daily life we need energy, and from where we are getting energy? We are getting energy from food. Now the question arises, from where we get food? Yeah, we get food from plants or animals. We get food from plants or animals. To get food, we must understand what is agriculture. Okay. To understand from where we are getting food, we must understand about agriculture. What is agriculture? As I told you earlier, what is agriculture? The science that deals with production of crops or raising of animal for human being is called agriculture. Right? So, in agriculture there are various activities we should perform. We must perform various activity to get product. Okay, and all these activities are called agriculture practices. Okay, there are 7 steps. There are 7 various activities which is together form agriculture practices. And I have already discussed with you about the first agriculture practice, that is soil preparation. Second, sowing of seeds. Third, applications of manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, weeding. Sixth, harvesting. And seventh, storing. So dear students, as I told you already how to prepare soil for growing crop, how to sow seeds, and what are the basic units or what are the uses of manure and fertilizers for crops. So today we will see about irrigation. Okay, today we will study about irrigation. Irrigation. So dear students, what does the irrigation mean? What does the irrigation mean? ये irrigation हम किसे कहते हैं? What is irrigation? Irrigation means the process by which we supply water to the crops. है ना? Irrigation. What is the definition of irrigation? Let us see. Supplying of water to the crop to the crops in the field. In the fields at particular intervals. Interval is called irrigation. So what is irrigation? Irrigation हम किसे कहेंगे? Supplying of water to the crops in the field. Okay, at specific interval of time is called irrigation. यानी कि irrigation का मतलब है जब हम लोग खेत में जो फसल हमारा हम लोग उगाने जा रहे हैं वो फसल में समय समय पे पानी की सिंचाई हम लोग जो करते हैं, पानी का सप्लीमेंट हम लोग जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. इन हिंदी इट मीन्स सिंचाई. ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के घर पे भी बगीचे हैं, आप लोगों के घर पे बगीचे हैं और अगर आप आपके रोज प्लांट में अगर पानी डालते हो तो उससे आप कहोगे कि आई एम इरिगेटिंग. दैट इज नॉट करेक्ट, है ना. एक पौधे में हम लोग पानी डालते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है वाटरिंग. लेकिन जहाँ हम लोग खेत में पानी भरते हैं, खेत में हमारी फसल को पानी डालते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इरिगेशन. अंडरस्टूड? पौधे में पानी डालना अलग होता है और सिंचाई करना अलग होता है. इरिगेशन में क्या है? इरिगेशन में हम लोग का कम्प्लीटली फील्ड जो है वो कम्प्लीटली फील्ड को हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं. कम्प्लीटली फील्ड, जितना बड़ा फील्ड है वो सारी फील्ड को हम लोग वाटर सप्लाई
करते हैं, इरिगेशन। अंडरस्टूड द पॉइंट? व्हाट इज इरिगेशन इज? इट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक इंटरवल। अंडरस्टूड? अभी मिश्रा साहब मुझे ये बताओ, व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप? Why water is important for the crop? अगर हम लोग एक क्वेश्चन रेस करें, why water is important for crops? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए, why water is important for the crops, तो क्या आंसर रहेगा? जैसे कि हम लोग देखे थे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, बिना मैन्योर और बिना फर्टिलाइजर्स के प्लांट या क्रॉप्स अच्छा ग्रो नहीं कर सकता है। तो फिर ये वाटर की क्या जरूरत है? व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉप्स? व्हाई? हैव यू एवर थॉट? क्या कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछे हो या कभी आप किसी फार्मर से पूछे हो व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉप्स? ओके, डोंट नो? आई विल एक्सप्लेन यू why water is important for the crops. So there are basic concepts, there are basic answers from where we will understand why water is important for the crops. So the first point is germination of seed doesn't take place without water. First, germination of seeds doesn't take place without वाटर। तो पहला आंसर, क्रॉप के लिए वाटर की जरूरत क्यों है? अच्छे क्रॉप ग्रोथ होने के लिए वाटर की जरूरत क्यों है? सो द आंसर इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस विदाउट वाटर। ये जर्मिनेशन क्या है? नया टर्म जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन क्या है? ग्रोइंग सीडलिंग्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। आप देखे होंगे, अगर हम लोग कुछ बीज को अगर पानी में भिगो के रखते हैं, कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद वो बीज में अंकुरम होता है, अंकुर हो जाता है, बीज में छोटे छोटे जड़ निकलने स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, चना का अगर हम लोग भिगो के रखते हैं या अगर हम लोग एक स्पेसिफिक दाल आती है उसको अगर हम लोग भिगो के रखेंगे तो कुछ दिन के बाद उससे अंकुरित हो जाती है, ठीक है, उससे मतलब जर्मिनेट हो जाती है, स्प्रोट आउट होती है। ओके, स्प्रोट आउट यानी कि उसका जड़ निकल आता है, इसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। इन इंग्लिश द ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि अगर हम लोग चना को अगर हम लोग पानी में भिगो के रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो फिर हम लोगों को क्या दिखेगा? वो चना से स्प्रोट आउट निकल आती है, चना से जड़ निकल आती है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन, कोई भी बीज में जर्मिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको पानी ना मिले। अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट, व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। फर्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस विदाउट वाटर। सेकंड पॉइंट, लेट अस सी सेकंड पॉइंट, roots fail to develop or elongate in dry soil. So, students, whenever we observe any plant, we can easily find out that plant grows time after time, है ना। हम लोग अगर कोई प्लांट को ध्यान से देखते हैं तो वो प्लांट क्या है? अगर हम लोग
हमेशा अगर हम लोग प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, रेगुलर इंटरवल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो दिन ब दिन वो प्लांट बढ़ती जाती है। हम लोग अगर एक छोटा सा पौधा लगाए हैं, आफ्टर अ वीक इफ वी सी इट, डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ। आफ्टर फोर्थ नाइट लिटिल मोर ग्रोथ। तो जैसे जैसे हम लोग रेगुलर इंटरवल में हम लोग किसी प्लांट को हम लोग देखते रहेंगे, रेगुलर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो वो प्लांट क्या है, वो ग्रोथ होता है, बढ़ता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट से छोटे से बड़े में बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, प्लांट नीचे की ओर भी बढ़ता है। प्लांट नीचे की ओर भी बढ़ता है। नीचे की ओर कैसे बढ़ता है? जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है, प्लांट एज टू पार्ट्स। प्लांट एज टू पार्ट्स। अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम, बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। मिट्टी से ऊपर जो रहता है, ग्राउंड के ऊपर जो पोर्शन रहता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। मिट्टी से नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। मिट्टी के नीचे रूट सिस्टम, मिट्टी के ऊपर शूट सिस्टम। और जिस तरीके से प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार से प्लांट नीचे की ओर भी बढ़ता है। प्लांट की रूट जो है वो नीचे की ओर बढ़ती है। एलोंगेटेड रूट फेल टू डेवलप और एलोंगेट इन ड्राई सॉइल। तो रूट जो है, अगर मिट्टी अगर सूखा रहेगा, मिट्टी में पानी अगर नहीं रहेगा, इफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज देयर इन दैट सॉइल, देन डेफिनेटली इट अफेक्ट ऑन द डेवलप ऑफ रूट ऑफ सर्टेन प्लांट। अंडरस्टूड? तो अगर हम लोग की मिट्टी में अगर हम लोग पानी ना डालें, या मिट्टी में अगर वाटर रिटेंशिप नहीं रहती है, वाटर अगर नहीं रहती है, तो वो जड़ जो है वो जड़ बढ़ेगा नहीं, जड़ वो छोटा होगा। अंडरस्टूड? 2 points. Germination of seeds doesn't take place without water. Second, roots fail to develop or elongate in their dry soil. Now, third point. Third point is nutrient cannot move upward from the soil to plant. है ना? आप लोगों को ये पता है अच्छी तरीके से कि प्लांट को न्यूट्रिशन कौन देता है, कौन पहुंचाता है प्लांट के हिस्से तक? रूट। ठीक है? प्लांट की जो जड़ होती है, वो जड़ का काम क्या है? मिट्टी के नीचे जाए और मिट्टी के नीचे से जो न्यूट्रिएंट होती है वो न्यूट्रिएंट को अपने इससे हर हिस्से तक पहुंचाए। राइट? सो एज यू नो, प्लांट प्रिपेयर इज ऑन फूड कॉल्ड द प्रोसेस photosynthesis. Okay, the process by which green leaves or green plant prepare food for themselves is known as photosynthesis. और ये फोटोसिंथेसिस के लिए 4 तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। 4 रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दे आर क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। तो हम लोगों का वाटर जो है, वाटर जब सॉइल में रहता है, वाटर के साथ अदर मिनरल होती है, वो मिनरल प्लांट के हिस्से तक कैसे जाएगा? थ्रू द रूट। ओके, सो सी न्यूट्रिएंट cannot move upward from the soil in absence of water. See, the third reason, nutrient cannot move upward from the soil in absence of water. Plant also need nutrient. जैसे हम लोगों को बढ़ने के लिए nutrient चाहिए, likewise plant also need nutrient to have proper growth, and this nutrient cannot move upward. ठीक है? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाती है, लेकिन प्लांट का न्यूट्रिएंट जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उठता है। नीचे से ऊपर की ओर कैसे उठता है? थ्रू वाटर। ठीक है? अगर वाटर रहता है तो एक सक्सेशन होती है, जिस वजह से कि प्लांट के रूट से प्लांट के हर पोर्शन तक वाटर सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। अबाउट दिस यू विल कम टू नो फर्दर। ओके, understood the third point? And the fourth point, it protects the plant from what?
plant from or air current. फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट जिसे आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में वी यूज एयर कूलर and to get fresh air what we used to do, we used to supply little water in that cooler. We have to store little water in the cooler so that we will get cool air. Okay, likewise when a plant get water then it reduce the hot air current. ठीक है, गर्मियों से बचाता है प्लांट को. Understood? Why water is important for crops? क्रॉप के लिए, फसल के लिए वाटर की जरूरत क्यों है? 4 पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस विदाउट वाटर. ओके. सेकंड पॉइंट, rows fail to develop or elongate in dry soil. Third, nutrient cannot move upward from the soil in absence of water. Fourth, water protects the plant from hot air current. Right? Okay. So dear students, ये तो रहा मतलब इरिगेशन हम किसे कहते हैं, that we understood. Okay, why water is necessary, why water is important for crops, that also we saw. Now let us see irrigation, methods of irrigation. Sources of irrigation. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. ये सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है? कभी अगर आप लोग खेती में जाए, खेत घूमने जाओगे, आप लोग देखोगे अलग अलग इंटरवल में किसान क्या करते हैं. फार्मर यूज टू इरिगेट द क्रॉप, इरिगेट द फील्ड. कैसे इरिगेट करते हैं? कोई फार्मर ऐसा होता है कि मतलब कैनाल से पानी लेते हैं. कोई होते हैं ऐसे कि अपने ही खेत के बीचों बीच में ट्यूबवेल रहता है जिससे कि पानी सप्लाई होती है. इस प्रकार के वाटर सप्लाई को हम लोग कहते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. तो इन बेसिकली सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस आर ऑफ टू टाइप. ओके, सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दे? वन इज ट्रेडिशनल, methods. एक है ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड्स. एक है पुराने जमाने में जैसे खेत में पानी दिया जाता था, वो उसको हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल मेथड. यानी कि पहले के ज़माने में लोग कैसे पानी देते थे, जब ट्यूबवेल नहीं था तब कैसे पानी देते थे? तब वो बेल का यूज़ करते थे, कुएं का यूज़ करते थे. ठीक है, कुएं का पानी मतलब खेत में डाल मतलब इरिगेट करते थे, सिंचाई करते थे. ये मेथड को कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न यानी कि आजकल नए उपकरण के माध्यम से मतलब पानी सिंचाई होती है खेत में. तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड आर ऑफ 4 टाइप. पहले ज़माने में खेत में कैसे सिंचाई होती थी? 4 तरीके से सिंचाई होती थी. वन इज मॉट मेथड, मॉट मेथड यानी कि या पुली मेथड. ओके, regarding this traditional method I will share one link. You can get understand very well. Okay, through that link. After this video I'll share one link. Okay, through that link you will come to know what is mott, what type of irrigation. Okay, traditional method, first one is known as mott method. Second one is known as chain method. Okay, your chain system.
Third one is known as Daily. Don't get confused because I will share one link along with today's class. And fourth one is राहत. तो ये सब पुराने ज़माने में ये सारी सिस्टम से होती थी. बेसिकली सारे सिस्टम मतलब कुएं से बिलोंग करता है. आजकल गांव में किसी के घर के सामने भी कुआं देखना बहुत मुश्किल है. ये मोट मेथड में क्या है, पुली मेथड, यानी कि कुएं से पानी को पुली के माध्यम से पुल आउट होता है. चाहे वो ह्यूमन करे चाहे वो एनिमल करे, पुल आउट होने के बाद बगल के खेत में वो पानी को छोड़ा जाता था. पुली सिस्टम. चेन सिस्टम मतलब टू डिफरेंट पुलिस आर फिटेड एंड टू बोथ साइड टू बकेट्स आर फिटेड. ओके. और ये जब दो पुली जब रोटेट होगी तो बकेट नीचे की ओर आएगी, वाटर कंज्यूम करके फिर ड्रॉप करती. ओके. इस तरीके से. सेकंड डेली. So about all this thing, now I am not discussing about all this type because I will share you one of my link. You will come to know better from that link. And in modern method, two types of irrigations are there in modern method. What is sprinkler system. Another is ड्रिप सिस्टम. ओके. इन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में खेत में पाइपलाइन रहती है और इन एवरी पाइपलाइन इन प्रॉपर डिस्टेंस, सपोज दिस इज पाइपलाइन and in proper distance of this pipeline one elongate perpendicular pipes are fitted, and at the top of those pipe one nozzle is fitted which generally keep on moving. This nozzle is keeping on moving. ठीक है, keeping on moving. और ये पानी को पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट करता है. This type of irrigation is known as sprinkler system and drip system. About these sources of irrigation you will get one link. That is my link, and you will understand all these topics, about all this topic, right? So students, in today's topic, what all things we understood? We learned what is irrigation, why irrigation is necessary for plants, and second thing, sources of irrigations. Traditional, what are the traditional sources of irrigation and what are the modern method of irrigations. Okay. So today's question. What do you mean by irrigation? Why water is important for crops? What are the sources of irrigation? So that's all for today's class, students. If you will have any confusion, any doubt, you can ask me through my WhatsApp, okay? And try to solve this answer. Till that time, just stay at home and keep healthy, keep smiling.
and spend your time properly with your parents. All the best.